नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डेली प्रैक्टिस प्रीलिम्स क्वेश्चन में आपका स्वागत है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके सामने दिए हुए हैं और आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द IMF, दैट इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट इज द मेंबरशिप ऑफ द IMF इज सब्जेक्टेड टू द compulsory capital subscription by the each member. Now this option is correct, that the membership is subjected to the compulsory capital subscription, means जितना आपने कैपिटल उसमें लगाया है उसके रेशियो में आपकी जो मेंबरशिप होती है वो डिसाइडेड होती है। ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो you can call it the SDR, that is a special drawing right, which is 2.7% for the India, 2.7%. ठीक। Next is the emergency loan of the IMF are limited to the corrections of the balance of trade. Actually, this statement is wrong because this is not balance of trade, it is the balance of payment. ठीक। Now, the balance of trade is a segment in the balance of payment. ठीक है। यानी कि balance of जो trade है वो एक segment है in the balance of payment. Means balance of payment is the part is the capital also and the revenue also. तो दोनों पार्ट आते हैं किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इस वजह से ये क्या ऑप्शन गलत है। एंड देन इज द advised rendered by the IMF on the monetary corrections to the member nation is mandatory. This is not right. वो mandatory नहीं होती है, तो उस हिसाब से देखा जाए so our B option is correct, means हमारा सिर्फ एक ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और याद रखिएगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपको पता होगा, जैसे IMF है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, ये अप्रोच तभी करते हैं इफ़ अ कंट्री इज़ फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है। सो दिस यू शुड नो फ्रॉम हेयर। इट्स लाइक दिस राइट नाउ द श्रीलंका एंड लेट्स से द पाकिस्तान, दीज कंट्रीज आर फेसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है। सो हम लोगों ने भी फेस किया था इन द 1991, इंडिया ऑल्सो फेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ओके। सो फ्रॉम दैट ऑप्शन B इज करेक्ट। ओके। तो हैव सम न्यूज़ रिगार्डिंग द IMF। तो IMF को जो एस्टैब्लिश किया गया था, इट इज़ इन द 1944 आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930. So 1930 there was a great depression, and after that IMF established in the 1944. Okay. And this is फाउंडिंग जो मेंबर थे, दे आर 44 फाउंडिंग मेंबर ऑफ द IMF. और IMF में जो बास्केट ऑफ करेंसीज होती हैं, ठीक है, सो करेंटली इट हैज़ 6 बास्केट ऑफ करेंसी, यानी कि 6 जो है उसमें करेंसी हैं। तो दिस यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद रेफरेंस टू द IMF, दिस इज़ द PYQ। ठीक है। ये क्या है, PYQ है। अभी हमने IMF के बारे में बात किया, अब हम बात करें PYQ के बारे में। विद रेफरेंस टू द IMF, दैट इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, ठीक, दैट इज़ द IMFSC, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले लिखा हुआ है the IMFSC, that is the International Monetary Financial Committee, discuss the matter of concern affecting the global economy and advises the IMF on the direction of its work. This is quite correct option. जो International Monetary Financial Committee है, ये क्या करती है, it basically discuss the matters affecting the global economy और advice देती है to the IMF. The next is the World Bank participates as an observer in the IMFSC meeting. This is also correct. So here, from here, both the options are correct. Okay. Now next question हम बात करें। The next question is regarding the classical dance of the मोहिनीअट्टम। आपको पता है कि जो मोहिनीअट्टम एक बेसिकली जो डांसर हैं वो उनकी भी डेथ हो गई है। So this question is regarding that only. Okay. Now with reference to the classical dance of the मोहिनीअट्टम, consider the following statement. The first is it is the solo female dance from form belonging to the state of the Kerala. Now this option is correct, that this dance belongs to the Kerala. The next is the tradition of this dance forms originate from the cult worshipping of the Lord Shiva. Now this statement is incorrect because this dance not belongs to the Lord Shiva, it's belong to the Lord Vishnu. So this you should know from here. The next is the cholu and the rhythmic structure is an important part of this dance
form. Now this option is also correct. So from here option C is the correct one. अगर आपको इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग जाननी हो तो you can just look at this image. ठीक है, so this is the image. Now from here we can see that it is the Mohiniyattam from the Kerala only, and it is also known as the Mohini. ठीक है, the incarnation of the Vishnu. तो basically मोहिनी जो थी वो it was the incarnation of the Vishnu performed by the women especially, and the thumping of the footstep is absent. In Mohiniyattam there is no thumping of the footstep, means we avoid the, and it narrates the story of the feminine dance of the Vishnu. Okay, and this the Mohiniyattam, what is the basically इसको जो लिखा हुआ था, it was written in the 1709. ठीक है ना, तो इसको लिखा हुआ था, एंड दिस यू शुड नो. एंड कॉस्ट्यूम कौन से इसमें पहनेंगे, दी कसाबू साड़ी ऑफ द केरला, वाइट एंड ऑफ वाइट बींग्स द प्रिंसिपल कलर, प्रेजेंस ऑफ द गोल्ड कलर ब्रॉकेट डिजाइंस, लेदर रैप्ड स्ट्रिप्स बॉल्स. तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दी मोहिनीअट्टम. ना ठीक है. सो ये हो गया हमारा. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और PYQ के बारे में बात करेंगे. PYQ 2030 में आया था. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया पोज इन द डांस एंड द ड्रामेटिक कॉल्ड द त्रिभंगा. तो आपको पता है कि त्रिभंगा एक पोस्चर होता है. ठीक है ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक मूर्ति मिली थी. वी फाउंड अ डांसिंग गर्ल. ठीक है, डांसिंग गर्ल. सो द डांसिंग गर्ल वॉज स्टैंडिंग इन दी त्रिभंगा पोस्चर ओनली. ओके, तो नाउ रिगार्डिंग दिस what is त्रिभंगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, what is त्रिभंगा. ओके, सो इट इज वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली but opposite to the curved at the twist and the neck. So this option is correct. त्रिभंगा क्या है कि लड़की खड़ी है and the body is slightly bent. तो you should know from here. ठीक है, this is त्रिभंगा. And if I want to show you the photo of त्रिभंगा, so त्रिभंगा posture. So you can just see from here, this is the त्रिभंगा posture. Okay, this is Tribhanga posture. You can see from here. So this girl is touching his belly here. तो ये इस posture में खड़ी है. And this posture is called Tribhanga posture. So this was the question in the PYQ. ठीक है, तो ये question किस में था, PYQ में था. The next question is with reference to the excavation site of the खिलाड़ी इन दी तमिलनाडु. सो तमिलनाडु में एक खिलाड़ी जगह है जहाँ पर एक्सकेवेशन किया जा रहा है. एंड दिस प्लेस इज लोकेटेड नियर द मदुरई वी कॉल्ड इट द टेम्पल सिटी. ठीक है, टेम्पल सिटी, यहाँ बहुत सारे टेम्पल है, दैट्स व्हाई द मदुरई इज कॉल्ड द टेम्पल सिटी. नाउ द फर्स्ट ऑफ दिस सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द वगई रिवर. दिस इज क्वाइट करेक्ट ऑप्शन बिकॉज the Madurai is itself located on the bank of the Vagai river. Okay, so Madurai is located on the bank of Vagai river, and henceforth because the Kiladi is near the Madurai, so that's why the Kiladi is also on the bank of the Madurai river. Okay, now it is an urban center belonging to the period imperial to the Chola dynasty. So this option is not correct. The third is the evidence of at this site proves that the use of the Tamil Brahmi scripts in this scripture. This is correct option कि जो इसके एविडेंस मिले हैं फ्रॉम दी क्लियरली इट प्रूव कि जो तमिल और ब्राह्मी के जो स्क्रिप्ट्स है, ठीक है, वो रिगार्डिंग इसके इंस्क्रिप्शन वहाँ पर मिले हुए हैं. तो दिस यू शुड नो फ्रॉम हेयर. तो फ्रॉम हेयर द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है PYQ. अगेन वन PYQ पहला बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अशोका मेजर रॉक एडिक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर अशोक, यहाँ पर जगह दी गई है और यहाँ पर प्लेस दिए हुए हैं. ये रॉक एडिक्ट्स हैं, ये प्लेसेस हैं. फर्स्ट इज धौली इज इन उड़ीसा. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. धौली रॉक एडिक्ट जो है वो उड़ीसा में ही है. द नेक्स्ट इज दी इरागुडी. ठीक है ना, इरागुडी इज इन दी आंध्र प्रदेश. या दिस इज ऑल्सो क्वाइट करेक्ट ऑप्शन. इरागुडी इज इन ऑल्सो दी आंध्र प्रदेश. द नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट दी
Jaugadha is Madhya Pradesh. Actually Jaugadha is not in the Madhya Pradesh, Jaugadha is in the Odisha. ठीक है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा. एंड द फोर्थ इज दी कालसी. कालसी इज इन दी कर्नाटक. एक्चुअली कालसी जो है वो कर्नाटक में नहीं है. ठीक है, कालसी इट इज़ इन दी उत्तराखंड. और उत्तराखंड में भी कहाँ, जो चकरता और देहरादून है. ठीक है, देहरादून, तो उन दोनों के बीच में पड़ता है क्या, कालसी, ये पता होना चाहिए. ठीक है ना, ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर. ठीक है, सो ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर इट इज़ फाउंड. सो इस हिसाब से हमें देखा जाए कि फर्स्ट और जो सेकंड जो दो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं. पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट. सो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. सो दैट्स वाई द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बात करते हैं which of the following is best describes the 30x30 pledge. So what is the 30x30 pledge? So actually 30x30 pledge is to halt and reserve the biodiversity loss by conserving the 30% of the world's land and 30% of the world's oceans by 2030. यानी 2030 तक हमें क्या करना है कि तो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको 30% क्या करना है, कंजर्व करना है. एंड जो वर्ल्ड का लैंड है उसको भी 30% कंजर्व करना है ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन बाय 2030. सो दिस इज फ्रॉम हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो एंड इंडिया का जो इंडिया होस्ट करता है 17% ऑफ द प्लैनेट्स ह्यूमन पॉपुलेशन एंड 17% ऑफ द ग्लोबल एरिया इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो ये पता होना चाहिए हमारा जो पॉपुलेशन है इट इज़ द 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड द ग्लोबल एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी कितना 70% हम लोग होल्ड करते हैं. दिस यू शुड नो फ्रॉम हेयर. ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन. ठीक है, सो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन द फॉरेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. फर्स्ट इज it is first endorsed at the United Nations Climate Summit 2014. This is correct option. जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट था, ठीक है, इसको एंडोर्स किया था 2014 में at the United Nations Climate Summit. तो this first option is the correct option. Next is it endorsed the global timeline to end the loss of the forest. This is also correct. तो जो भी फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, ठीक है, कैसे हम उसको कर्व करें. ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट के लॉस से कहीं ना कहीं क्या होता है, क्लाइमेट जो क्लाइमेट चेंज है वो भी होता है. ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के जो इमिशंस हैं, ठीक है, सो द इमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैस the emissions of greenhouse gas also happen. So these are the problem associated with the loss of the forest, or you can say the deforestation. ठीक है, so first is correct, second is correct, and then it is legally binding international declaration. No, actually the New York declaration on the forest is not legally binding, so here the third option is incorrect. And the fourth is it endorsed the governments. It endorsed by the government, the big companies and the indigenous community. This is correct option, that government and the big companies and indigenous communities all are supporting this initiatives. And so this is important, and India was one of the signatory at this inception. So this is not correct, India is not the signatory. So from here option 1 is correct, that is 1, 2 and 4 is correct option. So this is regarding the New York declaration on the forest. ठीक, the next is the next question is regarding the National Law Commission of the India. So पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है कि the National Law Commission of India it is the statutory body. ठीक है, so actually it is not a statutory body. ठीक है, और ये पता होना चाहिए एक्चुअली जो नेशनल लॉ कमीशन था इसको फॉर्म किया गया था बाय द नोटिफिकेशन फ्रॉम द हियर बाय द नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स. तो उसके अंतर्गत ये आता है. नेक्स्ट इज द so this option is first is incorrect. Next is the Law Commission of the India takes up the various subjects on the reference made only by the Supreme Court. ऐसा नहीं है, this is also incorrect. Actually the Law Commission takes various subjects on the reference जो है on the reference is provided by the Department of the Legal Affairs, Supreme Court, High Court and so this is it. Means जो भी recommendations को provide किए जाएंगे it will be provided by the Department of the Legal Affairs, Supreme Court and the High Court, not only by the Supreme Court. So from here the
the option 2 is incorrect. Next is the commission can sui motu initiate the study on the specific subjects. This is quite correct option. जो लॉ कमीशन है वो likewise the सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना. सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो एबल टू इनिशिएट द सुई मोटो कॉग्निजेंस. अगर कोई मैटर चल रहा है, ठीक है, लेट्स से कोई पोल्यूशन का मैटर चल रहा है एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्होंने देखा कि मैटर काफ़ी हाईलाइट में, सो द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक द सुई मोटो कॉग्निजेंस ऑफ दैट मैटर ऑल्सो. तो उस हिसाब से जो लॉ कमीशन है उसके पास भी पावर है दैट इट कैन टेक द सुई मोटो कॉग्निजेंस ऑफ एनी मैटर, ठीक है. और रेस्ट जो सर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, और जो भी द डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स है वो उसको क्या करेगा, एडवाइस करेगा टू टेक दिस मैटर ऑन. तो फ्रॉम हेयर हमारा जो ऑप्शन द थर्ड है इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस यू शुड नोज, ठीक है. एंड द कमीशन वर्क्स ऑन द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द रेफरेंस रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे हमने बताया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, keeping in the view the importance of the subject matter, and the commission initiates the study specific subjects and the sui motu, ठीक है. तो ये दिस वॉज रिगार्डिंग द लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया. नेक्स्ट हम बात करते हैं द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया इज अ 5 member body. दिस इज PYQ 2017. नो, इट इज़ नॉट 5 member body, इट इज़ 3 member body. फर्स्ट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड रेस्ट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड बाकी जो अदर हो जाएंगे वो अदर जस्टिस हो जाएंगे, ठीक है ना. पहला इंपॉर्टेंट क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. बाकी मैंने बताया था कि इनिशियली ये 3 member बॉडी नहीं थी, इनिशियली सिर्फ 1 member बॉडी थी. 1989 में अमेंडमेंट हुआ था इन द इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद क्या हो गया था, आफ्टर दैट इट बिकम्स द 3 member बॉडी. दिस यू शुड नो फ्रॉम हियर. आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है. एंड द यूनियन होम affairs decides the election schedules to the conduct of both general election and the by-election. This is incorrect option. It is decided by the election commission also only, ठीक है. Next is election commission resolve the dispute relating to the splits and merger of the reorganization of the political party. This is correct option. जो भी merger है, political party का जो भी issue है, split है, और the issues regarding the symbol or the naming of the political party, these all issues are dealt with the election commission only. Just like अभी आपने देखा that the महाविकास आघाड़ी, ठीक है, in the Maharashtra. So the election commission gave the judgment on the side of the Eknath Shinde that the Shiv Sena, the name of the Shiv Sena and the election symbol of the bow and arrow, both will belong to the एकनाथ शिंदे ओनली, ठीक है. तो ये पता होना चाहिए कि ये जो भी डिस्प्यूट्स है, ठीक है, वो सारा या अभी आपने देखा कि जैसे रामविलास पासवान की पार्टी, उनकी डेथ के बाद भी वो सारा जो इशू चल रहा था वो सारा इलेक्शन कमीशन ही देख रहा था. सो फ्रॉम हियर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड इन इंडिया. सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कौन कौन से कंपोनेंट है. द फर्स्ट इज इक्विटी कैपिटल इन द फर्म्स. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द अर्निंग नॉट रेमिटेड टू द डायरेक्ट इन्वेस्टर और री इन्वेस्टेड अर्निंग. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. देखिए इसका मतलब क्या होता है इस वाले का. देखो पहला लिखा हुआ है कि कैपिटल, इक्विटी कैपिटल इन द फर्म, यानी कि जो कोई भी आपका जो फर्म है उसमें इक्विटी कैपिटल जो आ रही है, FDI आ रही है, तो वो इंक्लूड होगा. तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. दूसरा लिखा हुआ अर्निंग नॉट रेमिटेड टू दी डायरेक्ट इन्वेस्टर और री इन्वेस्टेड. जस्ट लाइक अगर कोई कंपनी है उसने 10 लाख रुपए लगाए किसी बिजनेस में इंडिया में, और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 2 लाख का हुआ. अब 2 लाख, क्योंकि कंपनी लेट से बाहर की थी, फॉरेन कंपनी थी, तो 2 लाख जो रुपए है वो बाहर नहीं ले जाएगा. वो क्या करेगा, 2 लाख को अगर दोबारा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, कहाँ पर, इंडिया में, उसी बिजनेस में, तो उसको भी एक तरह का क्या माना जाएगा, इस 2 लाख को भी, ये तो FDI है ही है, ठीक है. एंड दिस 2 lakhs विल ऑल्सो इंक्लूड इन दी FDI ऑल्सो, ठीक है. तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो री इन्वेस्टमेंट होता है विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दी FDI. नेक्स्ट इज द इंट्रा कंपनी लोन, ठीक है. जो इंट्रा कंपनी लोन होंगे तो वो भी क्या होंगे, विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी FDI. देन इन्वेस्टमेंट टू द पार्टिसिपेटरी नोट. नो, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. क्यों, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा टू द पार्टिसिपेटरी नोट इट विल बी इंक्लूड इन दी FPI, दैट इज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है. तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा जो भी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. देखिए एक होता है FDI एंड द सेकंड इज द FPI. व्हाट इज़ द डिफरेंस. देखिए FDI में क्या है कि FDI बेसिकली इट इज़ अ लॉन्ग टर्म,
ठीक है, इट इज़ लॉन्ग टर्म, एंड FPI इट इज़ द शॉर्ट टर्म. तो दिस यू शुड नो फ्रॉम हियर. FDI इज़ द लॉन्ग टर्म एंड द FPI इज़ द शॉर्ट टर्म. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ FDI में एक्चुअली दो रूट होते हैं. ठीक है, द फर्स्ट इज़ द ऑटोमेटिक रूट एंड द सेकेंड इज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड. ठीक है, ऑटोमेटिक रूट मीन्स कि आपको परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द ऑटोमेटिक रूट. गवर्नमेंट रूट मीन्स यू नीड द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट. FPI मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको. ठीक है, एंड FDI में बेसिकली FPI में मोस्टली आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं. ओके, एंड FDI में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा इट इज़ मोर देन 10%, ये पता होना चाहिए. FPI में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है इट इज़ मोस्टली लेस देन 10%, तो ये पता होना चाहिए. FDI में इट इज़ मोर देन 10%, FPI में इट इज़ लेस देन 10%. और FDI में क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर होगा उसके पास ओनरशिप के राइट होंगे. ठीक है, ओनरशिप के राइट होंगे, प्लस उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट का राइट होगा वो भी क्या होगा, वो भी उसके पास होगा. ठीक है, और पर FPI में क्या होगा, FPI में उसके पास ओनरशिप का तो राइट होगा, पर उसके पास जो मैनेजमेंट का राइट है वो राइट उसके पास नहीं होगा. तो ये चीज़ पता होना चाहिए. ठीक है, और FDI क्या है, FDI में कई तरह के तरीक़ों से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर FPI में इन्वेस्ट करने के लिए यू हैव ओनली सम सॉर्ट ऑफ लाइक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये कुछ लिमिटेड तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये दिस यू शुड नो फ्रॉम हेयर. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें विद एक PYQ है, PYQ देखते हैं. ठीक है, PYQ क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड इट्स द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया जा रहा है. ऑप्शन इसका जो B है करेक्ट है. इट इज़ द लार्ज नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद अमंग योर फ्रेंड्स. थैंक यू. टिल देन टेक केयर. गुड बाय. जय हिंद, जय भारत.